So this is the heading that we have given, participant in equity shares and two class of ordinary shares, and यहाँ तक आपने question लिखा हुआ है करके, ठीक है. Entity has two class of shares in issue and इतना अपने लिखा है. Fair. Can we start now? तब सब ठीक है. लिखो. So the ordinary shares are then the ordinary shares are then paid in which, अरे that is fine, वो ठीक है. हाँ, the ordinary shares are then paid in which, the ordinary shares are then paid in which the preference shareholders, in which the preference shareholders do not participate, in which the preference shareholders do not participate. Full stop. Now, the next line is a little important one. लिखो, each preference share then participates in each preference share holder, each preference shareholder then participates in any additional in any additional ordinary dividend, in any additional ordinary dividend above rupees 5, above rupees 2 is a better answer, above rupees 2 at the rate of at the rate of 50% of any additional dividend, 50% of any additional dividend payable on ordinary share. पेएबल ऑन ऑर्डिनरी शेयर. बराबर. ये है वो पैराग्राफ जो बहुत ज़्यादा काम का है अपने, तो इसको आप ना स्टार मार के रखो करके. पूरा क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है मैम, कैन आई गो एट देन नेक्स्ट वन. लिखो, द एंटिटीज प्रॉफिट. अनिल भाई उसको बंद करो ना. हाँ, द एंटिटीज प्रॉफिट for the year, the entity's profit for the is rupees 1 lakh and the entity's profit for the year is 1 lakh and dividend of
₹2 per share dividend of ₹2 per share are declared on ordinary shares, are declared on ordinary shares. Full stop. Last line. Compute. Last line. Compute allocation of earnings for the purpose of allocation of earnings for purpose of calculation of BEPS when an entity has ordinary shares and participating equity instruments and participating equity instruments that are not convertible into ordinary shares, that are not convertible into ordinary shares, that are not convertible into ordinary shares. खत्म, डन, फेयर. अरे यहाँ तक का तुम्हारा क्लियर है क्या एकदम? ऑल गुड. दोज आर अटेंडिंग ऑनलाइन, प्लीज मी कंफर्मेशन. यहाँ तक एकदम सही है क्या अपना? जल्दी मेरे को बोलो, तो मेरे को आगे बात करने का है. एवरीबॉडी जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स प्लीज. ऑल गुड? यहाँ तक सब बढ़िया है अपना? ओके, ग्रेट. ओके, फैंटास्टिक. चलो, ग्रेट. एक मिनट. हाँ, ओके. ये स्टार्ट करो. मैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ. सुनो. सो द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. आई हैव इट विथ मी. आई रीड, और मेरी बात ध्यान से सुनना. सो दे आर टेलिंग यू, बॉस कुछ ऐसा है कि an entity has two class of shares in issue, 5,000 non-convertible preference shares and 10,000 ordinary shares. बराबर? Yes sir. अच्छा, फिर the preference shares are entitled to a fixed dividend of 5 rupees per share before any dividends are paid to the ordinary share. तो preference shareholders को 5 रुपये dividend मिल रहा है. ठीक है sir. Then the ordinary dividends are then paid in which the preference shareholders do not participate. सीधी बात है, एक बार इक्विटी वालों को डिविडेंड मिल गया तो प्रेफरेंस वालों को क्यों मिलेगा सर? उनको थोड़ी मिलेगा. अच्छा, देन each preference share then participate in any additional ordinary dividend above ₹2 at the rate of 50% of any additional dividend payable on ordinary share. एक्चुअली ना पूरा गेम इसी लाइन का है. अपने को ये देखना है कि ये लाइन का मतलब क्या है करके. ठीक है? यस सर. देखते हैं अपन. बाद में लिखा है एंटिटीज फॉर द ईयर इज 1 लाख at dividend of ₹2 per share are declared to ordinary shareholder, जो उनको मिलने ही वाला था. Allocation of earnings for the purpose of calculation of BEPS where entity has ordinary shares and participant equity instruments. That's it. चलो, एक काम करते हैं अपन लोग साथ में करते हैं.
लिखो लिखो इधर सॉल्यूशन, लिखो सॉल्यूशन, लिखो सॉल्यूशन, लिखो टोटल प्रॉफिट, लिखो टोटल प्रॉफिट shall be rupees total profit shall be rupees 1 lakh. Total profit shall be rupees 1 lakh. Then इसमें दो लोग हैं, एक प्रेफरेंस और एक ऑर्डिनरी, और एक ऑर्डिनरी. अच्छा, ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है सर? सो ऑर्डिनरी मतलब होता है इक्विटी. ठीक है ना, ये इक्विटी है. बराबर? यस सर, व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली. अच्छा, अब मेरी मस्त वाली बात एकदम ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं आप लोग को. ये जो प्रेफरेंस है ना यहाँ पे, इसे पार्टिसिपेटिंग इक्विटी शेयर्स बोलेंगे. क्यों सर? ध्यान से सुनना. वहां पे एक लाइन है जो मैंने आपको स्टार करी है, उसका मतलब ये है कि एक बार अगर इक्विटी वालों को आप डिविडेंड दे देते हो, उसके पहले आप सीधी बात है प्रेफरेंस वालों को दोगे, उनका नाम ही प्रेफरेंस होता है, तो पहले प्रेफरेंस वालों को दिया, फिर इक्विटी वालों को दिया. एक बार इक्विटी वालों को दे दिया, उसके बाद वापस वो लोग आते हैं डिविडेंड लेने के लिए, तब उन्हें पार्टिसिपेटिंग इक्विटी शेयर्स कहा जाता है. आई रिपीट अगेन, आपका चेन ऐसा चलता है, पहले आप प्रेफरेंस को दोगे, उसके बाद ही इक्विटी को दोगे. इक्विटी को देने के बाद अगर वापस प्रेफरेंस वाले आके बोलते हैं कि भैया हमें फिर से डिविडेंड चाहिए, तो उन्हें पार्टिसिपेटिंग इक्विटी शेयर्स कहा जाता है. सर ऐसा कंसेप्ट है मार्केट में? यस, एब्सोल्युटली करें. आपका इंडेक्स पूरा प्रैक्टिकल है, तो वो कंसेप्ट है मार्केट में. डू यू गेट दैट? तो इसको ना ब्रैकेट में आप लिखो, ये हो जाएंगे आपके पार्टिसिपेटिंग इक्विटी शेयर्स. सर इन्हें एडिशनल और क्या चीज मिलती है? कुछ नहीं, एक एडिशनल डिविडेंड मिलता है, दैट्स इट. उसके बाद कुछ नहीं. वोटिंग राइट मिल ही नहीं सकता, बिकॉज वोटिंग राइट तो प्योर इक्विटी को ही मिलता है. बराबर? अच्छा, अब सबसे पहले इनको मिल रहा है डिविडेंड, कितना मिल रहा है? तो अपन बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, इट इज ₹5 इंटू 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स. Sorry, what is that? 1866? No, no problem. Okay, can I say this is 25,000? ये तो 25,000 है आपका. अच्छा, इक्विटी को कितना मिल रहा है? जो प्योर इक्विटी है, तो अपन बोलेंगे सर उनको ₹2 मिल रहा है, तो ₹2 इंटू 10,000 शेयर्स क्लोज. अब ये कितना है? कैन ऐसे ये आपका 20,000 हो जाएगा. बराबर है क्या? यस. अब सवाल आता है अमाउंट कितना लेफ्ट हुआ है. देखो टोटल 1 लाख में से 25 और 20 कहने से आपने 45,000 दे दिया. बराबर? तो अपन बोलेंगे देयर फॉर अमाउंट लेफ्ट shall be 55,000. अमाउंट लेफ्ट शैल बी हाउ मच? 55,000. बराबर? अभी मूर्ख बच्चे की तरह ऐसा मत करना कि 50-50 कर लेते हैं. बराबर? इक्विटी आधा तू ले ले, प्रेफरेंस में आधा मैं ले लेता हूँ. नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो लाइन पढ़ो, मेरे को उस लाइन का मतलब जानने का है. दोज हु वांट टू गिव एन आंसर यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. उस लाइन का मतलब जानने का है मेरे को. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनो, इसका आप स्प्लिट करो और लिखो इक्विटी और प्रेफरेंस. इस लाइन का मतलब यह है कि जितना भी बचा है उसमें से अगर मान लो इक्विटी वालों को ₹1 मिलता है, तो प्रेफरेंस वालों को उसका 50% मिलेगा.
गलती से भी 50-50 मत बोल देना. इट इज वेरी क्लियर कि नाउ इफ द इक्विटी रिसीव्स 1 द प्रेफरेंस विल रिसीव 0.5. देखो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट एवर अमाउंट इज लेफ्ट नाउ प्योरली बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स नाउ. लेकिन ये प्रेफरेंस वाला मूर्ख बच्चा बीच में आ रहा है बिकॉज ये बोलता है मेरे पास पार्टिसिपेंट राइट है, ऑन पेपर आपने मेरे को दिया था, तो जितना भी पैसा बचता है ना उसका 50% मेरे को चाहिए. मतलब अगर आप उसको 1 रुपया दोगे आपको मेरे को 0.5 देना पड़ेगा. डू यू गेट दैट? अच्छा, अब डायरेक्टली इस अमाउंट को 0.5:1 के रेशो में आप बाइफरकेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स अलग है. बराबर एक के शेयर्स 5,000, एक के शेयर 10,000 है. तो क्या करने का, आप लिखो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. बराबर. तो यहां पे लिखो 5,000, यहां पे लिखो आपका 10,000. Please tell me, is it 2,500? So the answer is yes. Please tell me, is it 10,000? So the answer is yes. अब क्या करो, इस रेशो में आप बाइफरकेट करो उस 55,000 का. वो जो 25,000 है ना उसको इस रेशो में बाइफरकेट करो. टेल मी कितना आता है आंसर. 55,000 को इस रेशो में बाइफरकेट करने का. बोलो भाई लोग कितना आ रहा है. 55,000 shall be allocated in the ratio of 2,500 to 10,000. बोलो कितना आता है. 11,000 का यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे कितना आना चाहिए 44,000. अरे बराबर ना. कैसा आया 55,000 इंटू 2,500 डिवाइड बाई 12,500. यहाँ पे 55,000 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 12,500. बराबर. अच्छा, उन्होंने आपको ये नहीं पूछा था, उन्होंने आपको पूछा था आपका ईपीएस. ठीक है कि भैया ये बताओ ईपीएस कितना हुआ. तो ईपीएस मतलब क्या होता है, कहने से आपको ये निकालना पड़ेगा कि टोटल डिविडेंड कितना अर्न किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो. दैट इज द डिविडेंड पर शेयर. अरे डिविडेंड पर शेयर नथिंग बट द अर्निंग पर शेयर. अरे आपको समझता है क्या. देखो सर यहाँ पे कैसे पूरा का पूरा. अरे बाबा आपने पूरा का पूरा डिविडेंड बांट दिया ना, तो द एंटायर डिविडेंड इज द अर्निंग. अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला. सर लिखो देयरफॉर EPS for both class of shares EPS for both class of shares लिखो. एक है आपका पार्टिसिपेटिंग इक्विटी. बराबर. अब उनको कितना मिलने वाला है, तो देख उनको एक तो 25,000 तो मिला ही है, प्लस कहने से 11,000 भी मिला है. बराबर. तो टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल 5,000 शेयर्स. गिव मी एन आंसर. कितना आता है ₹7.2 पर शेयर. करेक्ट. एंड होगा तब देखेंगे. ओके ये मीटिंग इनके एंड होता है मैं आपको वैसे लिंक भेज दूंगा. सब नॉर्मल है इसमें. देन दूसरा ऑर्डिनरी शेयर्स. ऑर्डिनरी शेयर्स. अब इसमें कितना आएगा 20,000 प्लस 44,000 डिवाइड बाय 10,000 शेयर्स. कितना आ रहा है रुपीस 6.4 पर शेयर. ₹6.4 पर शेयर. एम आई वेरी वेरी क्लियर. दैट्स इट. ये अपने को निकालने का था. आपको समझा कि मैंने क्या बोला. डन. एनी डाउट ऑन दिस मैम. श्योर. ओके द लास्ट क्वेश्चन. डू मी अ फेवर. इन योर बुक देयर इज अ क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8. मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है क्लास वर्क सेक्शन का.
क्लास वर्क सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लीज करके दो। दैट्स इट, द चैप्टर इज ओवर। क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लीज करके दो, एंड दैट्स इट, द चैप्टर इज ओवर। It's done. Let's wait for people to join and let's start. Fair. Is it matching with the answers? Ma'am, is it matching with the answers which is there in the textbook? मैच हो रहा है? Great, fantastic. देखो अनिल भाई आया क्या? लिंक आया अनिल भाई? नया वाला आया? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, समझ गया समझ गया समझ गया, क्यों नहीं हो रहा? ओ वही भेज दिया मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। आ गए बच्चे लोग। ओके, ये भाई लोग आ गए क्या तुम लोग? चलो ग्रेट। Now, give a very nice heading to Ind AS 115. आ जाओ भाई लोग। अनिल भाई, ये मेरे को स्प्लिट करके अलग वीडियो देना। गिव वेरी नाइस हेडिंग टू Ind AS 115, यहाँ से मैं अलग करके देना, ठीक है? रेवेन्यू फ्रॉम contracts with customers. Revenue from contract with customers. Obviously this is the category A chapter. Obviously the question type has to be more of practical. Ind AS 115, revenue from contract with customers, the last category A chapter of your FR syllabus. We complete this chapter and we complete your 95% of your syllabus. Obviously this will definitely take your entire 1 week, but yes, once this is over it will absolutely be done. अरे बराबर है क्या? चलो एक सेकेंड, चलो ए भाई लोग स्टार्ट करूँ क्या मैं? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑन एन एवरेज ये आपके एग्जाम में लिखो, इधर 10 से 16 मार्क के बीच में आता है। 10 से 16 मार्क के बीच में आता है ऑन एन एवरेज ये आपके एग्जाम में, ठीक है? मतलब कहने से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। अगर आपको सीए इंटर का चैप्टर याद है, AS9 रेवेन्यू रिकग्निशन, उसका विकसित रूप है ये करके, उसका अपग्रेडेड वर्जन है। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? अच्छा, हेमंत कह रहा है सर इसके बाद जो भी चैप्टर्स बचेंगे उनकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। नहीं हेमंत, ऐसा नहीं है, अपना डेडलाइन है 31 जुलाई। तो अगर ये चैप्टर आपका 31 जुलाई के पहले कंप्लीट हो जाता है, जो मुझे दिख रहा है हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, 1-1.5 हफ्ते का ही चैप्टर है। तो उसके बाद एक आध छोटा चैप्टर जो बचेगा मैं आपको और करवा दूंगा, तो आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए बहुत कम जाएगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? हाँ, उसके बाद कोई चैप्टर बचता है ना, उसकी रिकॉर्डिंग देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बाकी सब देख लो, लास्ट में FR को वो छोटे छोटे चैप्टर्स देख लेना। डन? बट ट्राई करते ना पहले, जितना मैक्सिमाइज अपन कर पाए उतना अच्छा है ना आपके लिए, है ना? जितना मैं आपको क्लास में, जैसे एक एनालिसिस करके एक चैप्टर है जो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है, CPS से थोड़ा बेटर चैप्टर है, तो हो सकता है मैं वो क्लास में करवा दूं, है ना? तो अपन अपने लिए बेस्ट बेट क्या है, जितना जल्दी अपन क्लास में अच्छे से कर पाए उतना अपने लिए बेस्ट है। डन? जैसे Ind AS 33 आपका भी खत्म हो गया, तो उसको अब टच करने का जरूरत भी नहीं है। ये वाला चैप्टर भी अपन ने स्टार्ट कर दिया है, जो अपन क्लास में जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करता है। क्या बोलते हो? बराबर? सो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर 10 से 16 मार्क का ऑन एन एवरेज आपके एग्जाम में आता है। बराबर? अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज आप याद रखना, इधर ही आप लिख दो। आप ना क्या करना पता है,
इसके कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करके डायरेक्ट क्वेश्चन करना। कंसेप्ट रिवाइज करके ना डायरेक्ट क्वेश्चन करना। सर मतलब क्या है? मतलब ये है मेरे भाई कि आपको ना इस चैप्टर में डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। ज्यादा ना कंसेप्ट कंसेप्ट घुस घुस के मत पढ़ना। आपको कंसेप्ट समझना आना चाहिए ऑब्वियसली, जो मैं आपको समझाऊंगा, एंड उसके बाद डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पे अटैक करना। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? अच्छा क्यों ऐसा सर? देखो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बताता हूं, यहां पे ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1, द चैप्टर इज टू लेंदी। काफी लेंदी चैप्टर है, मतलब आप समझो कि आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस को जोड़ लो, उतना बड़ा चैप्टर है। सीएफएस मतलब 110, बिकॉज और जोड़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस को जोड़ लो, उतना बड़ा चैप्टर है, बट यस एक 1.5 हफ्ते में हो जाएगा। दूसरा, आपको ना कंसेप्ट अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझना होना चाहिए। आप ना इन डिटेल उसके बारे में पढ़ नहीं सकते, आपको बहुत दिक्कत आ जाएगा। पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपको कंसेप्ट समझ गया, दैट्स इट, आप आगे चले जाओ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडर्ड बनाया इंस्टीट्यूट ने। सर ये स्टैंडर्ड की शुरुआत हुई थी 2019 में। लेट मी टेल यू, मई 2018 में इंडेस आपकी बुक्स में आया है, फाइनल सी के बच्चों में। मई 2018 आई एम टॉकिंग अबाउट, आप तो तभी बहुत छोटे रहेंगे, बराबर। और ये वाला स्टैंडर्ड जो है ना वो इंस्टीट्यूट ने मई 2019 में लॉन्च किया, एक साल बाद फुल फ्लेजेड। दैट इज वे थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड, बराबर। तो काफी बड़ा बना है। आप क्या करना करके, ज्यादा क्वेश्चंस पे आप इस पे ध्यान देना, बराबर। मैं ट्राई करूंगा कि इसका लास्ट में 1-1.5 घंटे का एक रिवीजन वीडियो बना दूं, तो आपका पूरा एक साथ हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, एम आई वेरी क्लियर? और ऑब्वियसली मैं आपको एलडीआर क्वेश्चन दे दूंगा। डन, चलो नाउ गिव द हेडिंग। रोमन नंबर 1, कंसेप्ट क्लैरिटी। अरे कल ना मैं लेक्चर यूट्यूब स्ट्रीम ले लूंगा, तो ये सब दिक्कत ही नहीं आएगी। यूट्यूब स्ट्रीम कितना परफेक्ट चलता है करके, है ना, तो अपन वो कर लेंगे, ठीक है ना। रोमन नंबर 1, इंट्रोडक्शन, दैट इज कंसेप्ट क्लैरिटी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तबीयत भी डाउन ही। फेयर, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। सो अब पहला एग्जाम्पल अपन करता है। बेसिकली दिस इज एन इंट्रोडक्शन, दिस इज द कंसेप्ट क्लैरिटी। अपन डायरेक्टली एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फेयर, ओके। सुनो, मैं करता हूँ, बाद में छापना, आराम से समझ लो आप करके। सुनो, फॉर एग्जाम्पल ये रिलायंस लिमिटेड है, दैट इज जियो, ठीक है, और मैं इसका कस्टमर है। मैं कौन? मिस्टर एएस। अब रिलायंस ने मेरे को सर्विस प्रोवाइड किया। कैन ऐसे रिलायंस जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, बराबर। अच्छा, ऑब्वियसली रेवेन्यू कौन कमाएगा? सर रेवेन्यू तो रिलायंस कमाएगा। तो अगर रेवेन्यू रिलायंस कमाएगा, कैन ऐसे जो इंड एस 115 है अनडाउटेडली रिलायंस के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। रिलायंस ने मेरे को क्या बोला? बोलता आदित्य जी आपको एक बात बतानी है कि मैं आपसे लूंगा 10,000 रुपये। कितना लेंगे? 10,000 रुपये साल के, ठीक है, पर एनम। मैंने कहा ठीक है सर, क्या देंगे सर उसमें आप मेरे को वो बताइए सर। तो रिलायंस मेरे को बोलता है सर सुनो ना, ये 10,000 के बदले मैं आपको दूंगा 1 ईयर इंटरनेट सर्विस। क्या देंगे? 1 ईयर इंटरनेट सर्विस। मैंने कहा ठीक है, और क्या देंगे? आप 10,000 पर एनम भी छोड़ दो, 10,000 पकड़ लो, ठीक है, 1 ईयर इंटरनेट सर्विस देंगे। मैंने कहा ठीक है सर, और क्या देंगे? वो बोलता है मैं आपको दूंगा राउटर। पर सर ये राउटर जो है ना वो तो फ्री है सर, फ्री राउटर भी देना है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा और? कहते हैं सर
इंस्टॉलेशन जो है ना वो भी हमारे तरफ से फ्री है। मतलब सर अगर आप 10,000 रुपये दोगे ना तो आपको 1 ईयर इंटरनेट सर्विस मिल रहा है, राउटर एंड इंस्टॉलेशन हमारे तरफ से फ्री है, ऐसा मेरे को रिलायंस जो है वो गोली दे रहा है। बराबर। अच्छा मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, मेरे को एक बात बताओ, क्या ना ऐसे अपने घर पे जो सेटअप बॉक्स वगैरह लगा है बाई एनी चांस जियो का लगा है तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। रिलायंस आपसे मोटा मोटा एक अमाउंट लेता है और आपको ये बोलता है कि भैया हमारे तरफ से राउटर इंस्टॉलेशन जो है ना वो फ्री हो जाएगा, आपको जो पैसा भरना है ना वो आपको इंस्टॉलेशन के लिए भरना है। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला, इंडियंस को फ्री वर्ड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है करके, ठीक है। सो रिलायंस प्लेज इट वेरी वेल, रिलायंस अंडरस्टैंड्स कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस आपको क्या करेगा, रिलायंस आपको इंटरनेट का सर्विस का पैसा बोलेगा और आपको बोलेगा भैया एक काम कर, हमारे तरफ से राउटर इंस्टॉलेशन जो है वो फ्री है। डू यू गेट दैट? अच्छा अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ भी चीज़ दुनिया में फ्री होता है क्या? इज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड फ्री? नो, इट इज एब्सोल्युटली नॉट, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो अपने को क्या करने का, अपने को निकालने का, वी नीड टू कंप्यूट सॉरी एसएसपी। सर एसएसपी क्या है? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। क्या निकालने का? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। अपने को ना, अपने को जब अपने को पता है कि भैया एक से ज्यादा सर्विसेज है और खाली नाम का फ्री है तो अपने को निकालने का एसएसपी। सर एसएसपी क्या होता है? इट इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। एम आई वेरी वेरी क्लियर? नाउ व्हाट इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस? ध्यान से सुनने का, अपने को अपने आप को यह पूछने का कि अगर सिर्फ इंटरनेट लेते तो कितने में मिलता, अगर सिर्फ राउटर लेते तो कितने में मिलता, अगर अपन सिर्फ सेटअप बॉक्स लेते तो कितने में मिलता। अरे आपको समझा क्या मतलब कोई आपको पूछेगा कि मालिक ये बताओ कि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या है, तो ऐसा बताने का, देख 1 ईयर इंटरनेट सर्विस अगर कोई लेता तो 12,000, राउटर अगर कोई लेता तो 6,000 में हम देते, और इंस्टॉलेशन अगर कोई हमसे लेगा तो हम 2,000 में देंगे। अरे आपको समझता है कि ऐसा उनने हमको बोला या अपन ने निकाल लिया करके। अब क्या करने का, आपके वो जो 10,000 है ना उसको अलोकेट करने का, रुपीज 10,000 जो है उसको अलोकेट करने का इन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस रेशो। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला, आपका जो रुपीज 10,000 है उसको इस रेशो में आप कर देंगे अलोकेट। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला, इस रेशो में आपको आप लोग क्या कर देंगे, अलोकेट कर देंगे। अब प्लीज मेरे को अलोकेट करके बताओ ना कितना आता है, प्लीज मेरे को अलोकेट करके बोलो ना कितना आता है, जल्दी जल्दी प्लीज टेल मी कितना आ रहा है। 6 3 and 1। अब सवाल आता है कि सर अलोकेट क्यों करने का, क्यों मैं फालतू का इतना मेहनत करूं? अरे बाबा करना ही पड़ेगा। वाई? इसलिए बिकॉज राउटर और इंस्टॉलेशन दोनों डे 1 पे आ रहा है एंड दैट इज वाई इसका रेवेन्यू डे 1 पे बुक होगा, लेकिन 1 ईयर इंटरनेट सर्विस ओवर द पीरियड जा रहा है एंड दैट इज वाई इसका रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक होगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला, यू आर गिविंग राउटर इंस्टॉलेशन ऑन डे 1 टू द कस्टमर, दैट इज व्हाई यू नीड टू बुक रेवेन्यू ऑन डे 1, बट फॉर इंटरनेट सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू बुक रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एम आई वेरी वेरी क्लियर? इसका मतलब यह है भाई साहब, इसको तो मैं डे 1 पे बुक करूंगा और इसको मैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम बुक करूंगा। एम आई वेरी 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 क्लियर? डू यू गेट दैट? अच्छा सवाल आता है कैसे करने का सर, ये देखो, ये जो रिलायंस है दैट इज जियो की बुक्स है सॉरी, इसमें डे 1 पे मैं एक एंट्री मारूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू टू एडवांस रेवेन्यू इन द ब्रैकेट लाइबिलिटी। बैंक अकाउंट डेबिट कितना 10,000, टू रेवेन्यू कितना 4,000, एडवांस रेवेन्यू कितना 6,000। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा फिर 1 मंथ जैसे ही एंड हो जाएगा, बिकॉज आप तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हो, तो जैसे ही 1 मंथ एंड हो जाएगा अपन बोलेंगे बॉस एडवांस रेवेन्यू टू रेवेन्यू। अब वो 6,000 सीधी बात है 12 महीने का था, तो 6,012 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, कैन आई से इट इज 500।
अरे 500 ही आ रहा है ना, और कितना आ रहा है करके। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला। फिर सेकेंड मंथ में सेम, थर्ड मंथ में सेम, एंड वगैरह वगैरह। एम आई रियली क्लियर? ऐसा कब तक करने का सर? ऐसा करने का आपको 12 मंथ्स तक, क्योंकि ये सर्विस जो है वो तो 1 ही साल का है ना। डू यू गेट दैट? अच्छा सर, हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं क्या ईयर एंड के ऊपर? आप कर सकते हो, बट इंड एज 115 बोलता है कि सिंस यू आर बुकिंग द रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपको ऐसा ऐसा बुक करना पड़ेगा। डू यू गेट दिस? ये एकदम बेसिक एग्जाम्पल है जो मैंने आपके सामने रख दिया। क्या आपको ये चीज़ समझी कि नहीं समझी? फिर प्लीज़ आप इसको लिखो ना, ये इंट्रोडक्शन कंसेप्ट क्लैरिटी एग्जाम्पल है, प्लीज़ इसको लिखो। Those who are attending online, give me a confirmation. Is this very much clear, guys? Done. Fair. Correct? बराबर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ लिखो पॉइंट नंबर 2, कोर प्रिंसिपल। अब आप लोग टेक्स्ट बुक तो अनफॉर्चुनेटली लाइन हो गया आप लोग, है ना? ठीक है, कोई ज़्यादा मेरे को ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट बुक का, मैं आपको ना लिखा देता हूँ करके, 2 लाइन है इसमें। लिखो कोर प्रिंसिपल, लिखो, बोलो। कोर प्रिंसिपल मतलब क्या? मतलब तेरे को रेवेन्यू अगर बुक करना है तो अल्टीमेटली क्या करने का वो बता। कोर प्रिंसिपल क्या है करके, तो मैं लिखा तो 2 ही लाइन का है, लिखो ना। एन एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू बराबर, शॉर्ट में लिखा रहा हूं, ऑब्वियसली आपके टेक्स्ट बुक में है ये। एन एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, उसमें पॉइंट नंबर 1, in a manner that depicts in a manner that depicts in a manner that depicts the transfer of goods and services, in a manner that depicts the transfer of goods and services, बराबर। अच्छा, फिर बीच में लिखो एंड, बीच में लिखो एंड देन पॉइंट नंबर 2 लिखो, एट एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट्स, at an amount that reflects consideration, at an amount that reflects consideration that an entity expects to be entitled, at an amount that reflects consideration that an entity expects to be entitled in exchange of goods/services.
इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स स्लैश सर्विसेज। बराबर। अब क्या है सर, क्या लिखा है आपने इंग्लिश में, सर समझा ही नहीं। देखो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, इतना खतरनाक इंग्लिश है ना करके अपने को पढ़ के नहीं समझता। तो मैं देखो आपको काम के बात बताता हूँ। बोलता है देख तेरे को रेवेन्यू बुक करने का है ना, तो दो चीज ध्यान रखना। बराबर, कोर प्रिंसिपल दो चीज ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1 ऐसा बोलता है कि देख डिपिक्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ये कि अगर गुड्स सर्विसेज एक बार जा रहा है तो रेवेन्यू भी एक ही बार बुक होगा। अगर गुड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जा रहा है तो रेवेन्यू भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुक होगा। एम आई वेरी क्लियर? दैट इज योर पॉइंट नंबर 1। गुड्स और सर्विस एक बार तो रेवेन्यू वन टाइम, गुड्स और सर्विस ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो रेवेन्यू भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या है? एट एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट्स द कंसिडरेशन दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड। अरे किया ना अपन ने, वो बोलता है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशो में बांटो। क्या बोला मैंने? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशो में बांटो। तो आप भी ब्रैकेट में लिख दो ना, इन द दैट इज इन द रेशो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। कहने से अपन ने एग्जैक्टली वही किया था। बराबर, खाली जो इंग्लिश बोल रहा है तो अपने को लग रहा है अपने को ये क्या ही है करके। अरे आपको समझा मैंने क्या बोला? फेयर, डू यू गेट दैट? अच्छा, अब बाकी ये करके ध्यान सुनना, ध्यान से बोलू। अब लिखो एक लाइन छोड़ के। अब आपको ये कोर प्रिंसिपल याद नहीं रहेगा ना तो भी चलेगा। सर तो सर क्यों लिखवाया? अरे बाबा आपको बताने के लिए कि ऐसा कुछ भी है आपकी टेक्स्ट बुक में। बराबर, फिर एक लाइन छोड़ के लिखो इन ऑर्डर टू अचीव the core principle, in order to achieve the core principle in the bracket, in order to achieve the core principle in the bracket conditions for revenue recognition, in the bracket conditions for revenue recognition dash करके 5 points should be kept in mind, dash करके 5 points should be kept in mind, 5 points should be kept in mind। अब मेरी बात सुनो, ये कोर प्रिंसिपल आपको नहीं याद रहेगा ना तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं होता। आपकी टेक्स्ट बुक में तुम्हारा भाई क्या 100% कवरेज करा लेता है तो मैंने लिखा दिया, ठीक है। बट बाकी तुमको याद नहीं रहे तो भी चलेगा। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब कंडीशन ना डिटेल में दिए हुए आपकी टेक्स्ट बुक में। बराबर, अब मैं वो उतना डिटेल में नहीं जा रहा। जैसे कोर प्रिंसिपल में कैसा अपन डिटेल में गए, जरूरत नहीं। आपको ना ये पता होना चाहिए कि ये बोल करना क्या है, काम की बात। आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप लॉ नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो आप ना यहाँ पे लिख दो रेफर डिटेल थियोरी फ्रॉम टेक्स्ट बुक। मैं आपको मेन वर्ड बताता हूँ, रेफर डिटेल थियोरी फ्रॉम टेक्स्ट बुक इफ टाइम परमिट्स। बहुत ज्यादा जिंदगी में टाइम जरूर हो तो प्लीज जाके पढ़ना, बुक में मैंने सब कुछ दे रखा है करके। अब तो बुक और भी छोटी कर दी है। अरे पता है कि नहीं तुमको, कल अपने बुक लॉन्च कर दिया, डू यू रिमेंबर दैट? अगर आप यूट्यूब पे हो या कम्युनिटी पे हो तो मस्त मैंने बुक लॉन्च कर दिया। अच्छा बाय द वे वो प्राइस जो है वो आपके लिए नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हो। हाँ, अगर आप कुरियर से मंगाते हो तो द प्राइस इज सेम, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप कभी क्लास में आ रहे हो तो सर हमारे लिए आना, तो इट इज स्ट्रेट अवे 100 रुपीज लेस। जो मैंने आपको कल कमिट किया था इट इज एक्जैक्टली द सेम प्राइस, ठीक है। सो इट इज 500 रुपीज ओनली फॉर यू। आप एक काम करना, जो भी लोग को बुक चाहिए अक्षत करके अपने आपका फ्रेंड होगा उसको आप लोग मैसेज कर देना, वो एक लिस्ट मुझे दे देगा, तो आप लोग के लिए मैं क्लास में ले आऊँगा। तो आपका वो 100 रुपये बच जाएगा। आई नो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बट अननेसेसरी आप स्पेंड मत करो। चेतना जी अनफॉर्चुनेटली आप मत आइएगा, आप बहुत ही दूर है, तो मैं आपके लिए कुरियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको वो बेयर करना पड़ेगा, रियली सॉरी। तो आपके वो 600 ही लगेंगे, ठीक है। बट बाकी जो है वो आप क्लास से मुझसे कलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आपके लिए वो 500 में हो जाएगा, जो मैंने आपको कल कमिट भी कर दिया था, ठीक है ना। ओके फिर अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ करके। काफ़ी हाँ, मतलब आई थिंक इन हाफ एन आवर वी सोल्ड 70 कॉपीज, ठीक है। तो इट वाज दैट सरप्राइज फॉर अस बिकॉज वो मल्टीपल ग्रुप्स में गया था। प्रज्ञेश सर ने भी पोस्ट किया था, राकेश सर ने भी पोस्ट किया था, अभिषेक बंसल सर जो है वो है दूसरे इंस्टीट्यूट में, बट वो भी मेरे काफ़ी अच्छे कलीग है, तो उनने भी मेरे लिए पोस्ट कर दिया था। तो वी सोल्ड 70 कॉपीज इन हाफ एन आवर एंड आई थिंक अभी मैं जाऊँगा तो घर पे जाके वही सब चलेगा। सो यस, बट आपके लिए ऐसे डिस्काउंटेड प्राइस ही रखा है मैंने,
ठीक है, सो आपको अगर चाहिएगा तो आप जाके आप देख लीजिएगा। फर्स्ट लॉट में आई थिंक अभी 30-35 कॉपीज बची है, फिर वापस अपने को 3-4 दिन रुकना पड़ेगा, बट आपका वो डेडलाइन जो है वो खत्म हो जाएगा। सो आप अकॉर्डिंगली अपना कॉल लीजिए। फिर कैन वी स्टार्ट? ओके नाउ, सो कंडीशंस फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन अपन अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला डिटेल थ्योरी आप टेक्स्ट बुक में से पढ़िएगा। ओके, अब देखो, लिखो पॉइंट नंबर ए क्या है, लिखो कॉन्ट्रैक्ट। मेन वर्ड आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर ए है आपका कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर ए इज कॉन्ट्रैक्ट। सर मतलब, अरे भैया आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे अरे जियो के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था ना कि भैया 1 साल तक आप मेरे को सर्विस देना, मैं आपको पैसा दे देता है, बराबर? तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। डन। अच्छा, दूसरा इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। दूसरा क्या बोला मैंने? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मतलब जियो बदले में आपको क्या क्या देगा, जो भी गुड्स जो भी सर्विस जियो आपको देगा ना, उसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते हैं। आई रिपीट, जियो आपको बदले में क्या क्या देगा, जो भी गुड्स जो भी सर्विस जियो आपको देगा, उसे प्यार से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते हैं। एम आई वेरी वेरी क्लियर? मतलब सर यहाँ पे लिखो ना, आप मेरे को बताओ जियो क्या क्या दे रहा था। तो कहने से जियो आपको इंटरनेट दे रहा है फॉर 12 मंथ्स, फिर जियो आपको राउटर दे रहा है, और जियो आपको इंस्टॉलेशन भी दे रहा है करके, और जियो आपको इंस्टॉलेशन भी दे रहा है। अरे बराबर की नहीं? तो बेसिकली जो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जियो जो है वो आपको देता है, वो सारा इधर आ जाएगा। डू यू गेट दैट? अरे आपको समझता है क्या? इंटरनेट, राउटर एंड इंस्टॉलेशन। अच्छा, देन नेक्स्ट देखो ट्रांजैक्शन प्राइस। आई रिपीट, डिटेल में ना बहुत ज्यादा लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, मैं काम की बात कर रहा हूं करके। अरे आपको समझता है क्या? अच्छा, ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब जियो आपसे चार्ज कितना कर रहा है, लिखो ना करके, कितना चार्ज कर रहा है जियो आपसे? 10,000, बराबर। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर डी, अलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अरे किया ना अपन ने एलोकेट, अपन ने तो किया था कि 10,000 में से राउटर का कितना, इंटरनेट का कितना, बराबर, फिर अपना इंस्टॉलेशन का कितना किया था ना अपन ने। अरे आपको समझ रहा है कि मैंने क्या बोला? सो एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लिख दो ना यहाँ पे। 10,000 जो है उसको अपन ने ऐसा 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 लिख दो, आपको याद आ जाएगा। करेक्ट? देन recognize revenue। recognize revenue, बराबर। अच्छा, क्या ऐसे ईवी अपन ने किया था, बराबर। अपन ने क्या किया था, जो आपका इंटरनेट है, बराबर, वो अपन ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुक किया, लेकिन जो राउटर इंस्टॉलेशन है, क्या ऐसे वो अपन ने डे 1 पे बुक कर लिया। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? सो दैट इज अ रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। डू यू गेट दैट? तो ये 5 कंडीशन जो है आपको याद होने चाहिए करके, बराबर। अच्छा, आप एक इसको याद कैसे करें? तो यहाँ पे लिखो सीपीटी ए आर, बराबर। मैं बच्चों को ऐसे बोलता हूँ सीपीटी में ए आई आर, ठीक है? तो ये 5 आपको कंडीशन याद होने चाहिए। जल्दी से एक बार 5 कंडीशन रट्टा मान लो ना, जल्दी, इंपॉर्टेंट है, वरना मैं आपको बोलता नहीं याद करने। जल्दी। डन? करेक्ट? ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। अब इसमें एक एक करके अपन अटैक करेंगे, ठीक है? सो आप इसमें जो पॉइंट नंबर ए है, अब मेरी बात सुनो, आपको चैप्टर में करना क्या है? चैप्टर में है 5 पॉइंट्स, आपको ये पांचों पॉइंट्स को ना एक एक करके हैमर करना है। मतलब आप पहले पॉइंट नंबर ए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पढ़ोगे, फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस, फिर पॉइंट नंबर डी, फिर पॉइंट नंबर ई। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। इतना छोटा चैप्टर नहीं है, एक एक पॉइंट को काफी टाइम लगेगा। डू यू गेट दैट? तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ योर पॉइंट नंबर ए। लिखो, लिखो पॉइंट नंबर 3 is identify the contract। यहां पे लिख सकते हो आप पॉइंट ए ऑफ अबाव, एंड इसको प्यार से बोलेंगे स्टेप नंबर 1।
इसको प्यार से बोलेंगे स्टेप नंबर 1। मतलब मैं एक मस्त वाली बात बोल दूं क्या? ध्यान सुनो, एकदम ध्यान से। मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, बोलूं? मैं आपको ये बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कोर प्रिंसिपल याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आपको ये 5 पॉइंटर्स याद होने चाहिए। मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 5 पॉइंट्स। आउट ऑफ दैट पॉइंट नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। डू यू गेट दैट? अच्छा, अब आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 पॉइंट्स है, ठीक है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वापस से 5 पॉइंट्स है, तो अपन एक काम करता है, वो 5 पॉइंट जो है ना वो अपन लिख देते हैं करके। कैन वी स्टार्ट? ओके, लिखो इसमें। अच्छा, ये कौन सा 5 पॉइंटर्स है? ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का 5 पॉइंटर्स है क्या आइडेंटिफाई द कॉन्टैक्ट का 5 पॉइंटर्स है? आइडेंटिफाई द कॉन्टैक्ट का 5 पॉइंटर्स है। आई रिपीट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो सीपीटी एआईआर बराबर, वो 5 पॉइंट मीट होगा तो रेवेन्यू बुक कर लोगे। उसका पॉइंट नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 पॉइंट्स है। डू यू गेट दैट? फेयर। तो वही वापस अपन क्या करेंगे, वही मैं आपको शॉर्ट में लिखाऊंगा। डू यू गेट दैट? चलो तो लिखो ना करके, लिखो द फॉलोइंग। अच्छा, वापस सेम, रेफर डिटेल थियरी फ्रॉम टेक्स्ट बुक। मैं तो काम की बात दिखाऊंगा, रेफर डिटेल थियरी फ्रॉम टेक्स्ट बुक। लिखो द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी चेक्ड। The following criteria should be checked for recognizing an accounting contract. The following criteria should be checked for recognizing an accounting contract. The following criteria should be checked for recognizing an accounting contract. बोलू? लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो party should have approved the contract. The party should have approved the contract and should be committed. The party should have approved the contract and should be committed to perform the obligation. The party should have approved the contract and should be committed to perform the obligation. बराबर है क्या? अच्छा, मतलब क्या बोलता है, देख पहले तो पार्टीज का अप्रूवल होना चाहिए एंड दोनों पार्टी का कमिटमेंट होना चाहिए। कहने से जियो और अपने केस में दोनों का अप्रूवल था एंड दोनों कमिटेड थे। ठीक है सर, तो कॉन्ट्रैक्ट था ही। अच्छा, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पॉइंट है कि ये हम जान रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करे कि नहीं करे। भैया हम ये जान रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करे कि नहीं करे। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट नंबर 2, लिखो राइट्स रिगार्डिंग गुड सर्विसेज डैश करके आइडेंटिफाइड। ऐसा लिख दो, ईच पार्टीज राइट्स रिगार्डिंग गुड्स स्लैश सर्विसेज डैश करके आइडेंटिफाइड। ईच पार्टीज राइट्स रिगार्डिंग गुड्स स्लैश सर्विसेज डैश करके आइडेंटिफाइड। ईच पार्टीज राइट्स रिगार्डिंग गुड्स स्लैश सर्विसेज डैश करके आइडेंटिफाइड। मतलब दोनों पार्टीज को अपना हक पता होना चाहिए ऑन द गुड्स स्लैश सर्विसेज। बीइंग अ कस्टमर मेरा हक बनता है कि जो आपने प्रॉमिस किया मेरे को दे दो। बीइंग अ कंपनी आपका हक बनता है कि जो मैंने पैसा प्रॉमिस किया मैं आपको दे दूं। अरे आपको समझता है क्या? तीसरा, पेमेंट टर्म्स शुड बी आइडेंटिफाइड। पेमेंट टर्म्स शुड बी आइडेंटिफाइड। पेमेंट टर्म्स शुड बी आइडेंटिफाइड। मतलब कैश में कितना दे रहे हो, काइंड में कितना दे रहे हो, बता दो। अरे आपको समझता है क्या? क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, सब पहले ही बता दो। डू यू गेट दैट? अच्छा, देन पॉइंट नंबर 4, लिखो कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव, द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव commercial substance. The contract should have
commercial substance. The contract should have commercial substance. मतलब जेन्यून होना चाहिए. जेन्यून, ये तो मैंने आपको शायद अपने पीपी में भी करवाया. कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस. हैज मतलब जेन्यून होना चाहिए. ठीक है. लास्ट वाला, इट इज प्रोबेबल दैट, लास्ट वाला, इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी it is probable that the entity will collect consideration. It is probable that the entity will collect consideration. मतलब जिसको आपने सर्विस दिया है ना, वो आपको पैसा देना चाहिए. अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? अरे yes, no. अच्छा लिखो लास्ट लाइन. If the above 5 criteria are not met, if the above 5 criteria are not met, then there is no accounting contract. If the above 5 criteria is not met, then there is no accounting contract and revenue cannot be recognized. And revenue cannot be recognized. अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? मतलब अगर ये 5 पॉइंट्स आप मीट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा तब पॉइंट नंबर 1 मीट होगा. पॉइंट नंबर 1 मीट होगा तो आगे के पॉइंट चेक कर सकते हो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए. डू यू गेट दैट? मतलब अगर ये 5 पॉइंट में से भी एक भी पॉइंट मीट नहीं हुआ ना, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है दादा. कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात ही नहीं करने का. आई होप आपको इतना समझा होगा. समझता है कि मैंने क्या बोला? अच्छा, इसके अब कुछ एक्सेप्शन भी है, अपने को वो डिस्कस करने का. एक बार मैं क्या करता हूँ, मीटिंग वापस शायद एंड हो रहा है, मैं वापस कट करके आपको लिंक भेजता हूँ. आज के दिन थोड़ा ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज उनके पास शायद मेल आईडी नहीं है. रुको, मैं कट करो, वापस भेज रहा हूँ, वापस ज्वाइन करो. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. कैन वी स्टार्ट नाउ? आ गए सारे के सारे. चलो, फैंटास्टिक फैंटास्टिक. ओके, ए भाई लोग, कैन वी स्टार्ट? यस. अब मेरी बात सुनो ध्यान से. मैंने क्या बोला? मैंने बोला देख, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट के 5 पॉइंट्स है, लेकिन इसके कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है. मतलब पांचों में से अगर एक पॉइंट आपने मीट नहीं किया ना, तो भी कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ. एक लाइन छोड़ो एंड लिखो एक्सेप्शंस. लिखो एक्सेप्शंस. बराबर. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ना मैं आपको एक्सेप्शन का ना एक एग्जाम्पल करवाता हूँ. ठीक है, उसके बाद मैं एक्सेप्शन लिखाता हूँ. एक काम करो, एक्सेप्शन के लिए ना आप आधा पेज छोड़ देना. ठीक है, आधा आधा पेज नहीं, सॉरी, आप कितना लाइन छोड़ोगे? 6 लाइन छोड़ देना. 4 से 5 लाइन छोड़ देना, मैक्सिमम 6, उससे ज्यादा मत छोड़ना. और फिर मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं. फिर मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं. डन? ओके, चलो एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो. ठीक है, अभी मन तो आया नहीं, वरना अपना फेवरेट हो जाता है. अर्नव है, अर्नव बच्चे को ले लेता है. अर्नव अपना अच्छा बच्चा है. कैन वी स्टार्ट? देखो ध्यान से सुनो. अभी ना क्या पता है, अभी जैसे ना मेरा पेंट हाउस है ये. ठीक है, किधर? वही ना एक जगह है ना, गरीब सी करके, नेपेंसी रोड करके, उधर. ठीक है ना, तो मरीन ड्राइव के सामने. अरे हाँ बोलना तुम लोग करके. ठीक है, मैम से यस, थैंक यू सो मच. तो ये ना मेरा पेंट हाउस है करके, मरीन ड्राइव के सामने. अभी एक रिच चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA अर्नव एग्जाम्पल. ठीक है, अब रिच चार्टर्ड अकाउंटेंट है. आई ओन दिस पेंट हाउस. अर्नव बोलता है सर आपका जो पेंट हाउस है करके मेरे को बाय करने का है. वॉन्ट्स टू बाय, ही वॉन्ट्स टू बाय दिस पेंट हाउस करके. ठीक है, सेलर कौन है? सेलर ऑब्वियसली मैं ही हूँ. बायर कौन है? ऑब्वियसली अर्नव है. मैंने बोला क्यों बाय करने का? तो सर स्विमिंग पूल एंड ऑल है, हेली पैड है, अंदर से गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हैं, सी साइड व्यू है, मतलब सब दुनिया, हर एक चीज़ जो एक मर्द को चाहिए होती है सब है इसके अंदर. तो मेरे को पेंट हाउस बाय करने का है.
तो मैंने कहा ठीक है बाय कर ले, मेरे को क्या दिक्कत है। अच्छा सीधी बात है, सेलर में गुड्स मैं बेचूंगा तो 115 जो है वो किसको एप्लीकेबल हो जाएगा, वही मेरे को एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा अब अर्नव जो है ना करके इसका इसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अर्नव बोलता है सर सुनो, मैं ना आपको आज टोकन मनी देता हूँ। क्या देता हूँ, टोकन मनी। अगर आपको याद है तो प्रॉपर्टी मैटर्स में ऐसा ही होता है, टोकन मनी दिया जाता है। तो मैंने कहा दे दे। तो इसने मेरे को टोकन मनी दिया। कितना, देखो प्रॉपर्टी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, करोड़ मतलब भाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है करके, तुम्हारा भाई 100 करोड़ का है, ठीक है ना, सब बुक बुक बेच बेच के 100 करोड़, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि इसने बोला सर मैं आपको टोकन मनी देता हूँ ना करके। तो मैंने कहा कितना देगा, बोलता 10,000, गरीब, ठीक है। तो इसने मेरे को 10,000 रुपये टोकन मनी के नाम पे दे दिए। तो मैंने कहा अब, बोलते सर 3 दिन पहले मैं आपका ये जो बढ़िया सा कमरा है, ये जो बढ़िया सा पेंट हाउस, इसको मैं यूज़ करूँगा। 3 दिन के बाद अगर मेरे को जमा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा बाकी के, बराबर, वरना फोरफिटेड, बराबर। अरे टोकन मनी तो आपको पता है ऐसा ही होता है, फोरफिट होता है। तो 3 दिन में क्या करूंगा, बढ़िया सा आपको प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ करूंगा, मेरे को जमा तो वेरी गुड, वरना मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नाउ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एएस, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू तो मैं ही बुक करूंगा ना, बराबर। क्या जर्नल एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, बुद्धि लगाओ, शुड आई राइट टू रेवेन्यू, क्या मैं टू रेवेन्यू लिख दूं क्या, नो, बिकॉज ये आपका रेवेन्यू है ही नहीं, ये आपका एडवांस लाइबिलिटी है। कितना, 10,000। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला, अच्छा अब ये तो मैंने बुक कर दिया, अब ये मैंने एडवांस लाइबिलिटी जो है ना वो कर तो दिया, बराबर। अच्छा अब सवाल आता है क्यों सर आप रेवेन्यू क्यों नहीं बुक कर रहे हो। मैं आपसे ना कुछ चीज पूछता हूँ, रेवेन्यू बुक करने के लिए कितने कंडीशन चाहिए, 5, करेक्ट। पहला कंडीशन क्या था, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट में 5 कंडीशन है, आपने लिखे थे, जाके चेक करो। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट के पहले आपने मेरे को बोला सर रेवेन्यू बुक करने के लिए 5 पॉइंट चाहिए, सीपीटी एआईआर, बराबर, उसमें आई साइलेंट है। उसमें पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5 पॉइंट है, बराबर। उसमें पहला पॉइंट अगर आपको याद है, पार्टी शुड हैव अप्रूव्ड, याद है क्या आपको, लोग एक बात बताओ, क्या दोनों ने अप्रूव कर दिया, क्या दोनों ही पार्टी ने अप्रूव कर दिया, नो। अरे अभी तो भाई वो सिस्टम चल रहा है, अरे अभी बफर टाइम चल रहा है, बफर। तो हो सकता है ना इन 3 दिन में एएससी मना कर दे, या हो सकता है 3 दिन के बाद अर्नव मना कर दे। मतलब मैं ऐसे बोलूं क्या, बॉस ध्यान से सुनना, रेवेन्यू के 5 पॉइंट्स है, सीपीटी एआर, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के 5 पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट पार्ट अप्रूव, कहने से यहां पे वही नहीं है, तो कहने से यहां पे जो है 4 पॉइंट जो है वो आप चेक ही मत करो। और अगर कहने से ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो कहने से अल्टीमेटली रेवेन्यू भी नहीं है। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला, भाई कॉन्ट्रैक्ट के जो 5 पॉइंट्स हैं पहला पॉइंट ही मीट नहीं हो रहा है तो बाकी क्राइटेरिया चेक ही मत करो, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो सीपीटी एआर में पहला पॉइंट ही मीट नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू नहीं है। डू यू गेट दैट। अच्छा लेकिन 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 आफ्टर 3 डेज अपना जो अर्नव है उसने बोला नॉट इंटरेस्टेड। बोलते सर सी साइड प्रॉपर्टी है तो क्या हुआ, पेंट हाउस है तो क्या हुआ, ऊपर हेलीपैड है तो क्या हुआ, अंदर स्विमिंग पूल है तो क्या हुआ, सर जमीन ही रहे। मम्मी बोलती है बाजू में मंदिर चाहिए, बाजू में मंदिर है ही नहीं, सर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को आपकी प्रॉपर्टी घटिया सी नहीं चाहिए, ऐसा अर्नव ने मेरे को बोल दिया। आप मेरे को एक बात बताओ, अर्नव ने ये ट्रांजैक्शन फॉरफिट कर दिया सॉरी, शुड आई रिटर्न द 10,000, नो, टोकन मनी इज नेवर रिटर्न, इट इज ऑलवेज फॉरफिटेड। एंड दैट इज वाई जैसे ही दोनों में से एक भी पार्टी ने ये ट्रांजैक्शन फॉरफिट कर दिया मैं रेवेन्यू बुक कर दूंगा। डू यू गेट दैट। आई विल से देयरफॉर एडवांस इनकम स्लैश लाइबिलिटी टू रेवेन्यू 10,000 मैंने रेवेन्यू बुक कर दिया, इवन इफ there was no contract। मतलब सीपीटी एआर में
तेरा सी वाला मीट नहीं हुआ तो भी आप कभी कभार रेवेन्यू बुक कर देते हो अगर टोकन मनी इन्वॉल्व है जो अपन फोरफिट कर रहे हैं। एम आई वेरी वेरी क्लियर? क्या ये आपको समझा कि मैंने क्या बोला? डू यू गेट दैट? फेयर। तो ये आप एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं आपको वो जो लाइन आपने लिखी थी ना करके, वो 2 लाइन आपने छोड़ी थी, वो मैं आपको लिखाता हूँ। अच्छा पहले वो 2 लाइन लिख दोगे आप लोग? अच्छा रहेगा, आप वो लिख दो ना करके, लिखो ना, तो आपने जो जगह छोड़ी थी लिखो, लिखो। However, an entity can recognize revenue if however an entity can recognize revenue if an entity can recognize revenue if उसमें पॉइंट नंबर 1, उसमें पॉइंट नंबर 1, द अग्रीमेंट गेट्स टर्मिनेटेड, the agreement gets terminated and the agreement gets terminated and the consideration received by the entity is non-refundable. The agreement gets terminated and the consideration received by the entity is non-refundable. And the entity has, and this is your point number 2, the entity has no outstanding performance obligation, and the entity has no outstanding performance obligation. क्या लिखा आपने? द एंटिटी हैज नो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एग्जाम्पल इन द ब्रैकेट लिखो, एग्जाम्पल इन द ब्रैकेट लिखो, एग्जाम्पल टोकन मनी forfeited, एग्जाम्पल टोकन मनी forfeited. बराबर बराबर। मतलब क्या? मतलब ये कि पॉइंट नंबर 1 दोनों में से एक भी पार्टी ने टर्मिनेट कर दिया, दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा, और जैसे ही तूने टर्मिनेट कर दिया, मेरा जिम्मेदारी ही नहीं बनता है कि मैं तेरे को पैसा लौटाऊं। तो अगर मेरा जिम्मेदारी ही नहीं बनता है कि मैं तेरे को पैसा लौटाऊं, कहने से खत्म, टोकन मनी फॉरफिटेड। डू यू गेट दैट? अच्छा, तो मैं क्या करूंगा? रेवेन्यू बुक कर लूंगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? फेयर। लिखो, कहने से यही होता है, रियल लाइफ में यही तो होता है करके। अरे आपको समझता है क्या? लिखो ये वाला एग्जाम्पल जल्दी। डन हो गया? चलो फेयर। अब ना कुछ ये हो गया, दैट्स इट। तो आई थिंक ये आपका कौन सा था? इसमें इसमें पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना करके, ठीक है? तो ये आपका कौन सा था? पॉइंट नंबर 3 था, करेक्ट? ओके, अब इसमें लिखो 3A। सर 3A क्यों 4 लिखा दो? नहीं, उसी का पार्ट है, लिखो 3A। लिखो की टर्म्स, की टर्म्स, करेक्ट? अच्छा, अब इसमें लिखो पहला पॉइंट नंबर 1, ये मैं आपको इधर लिखा है तो 2-2 लाइन का ही है। लिखो पॉइंट नंबर 1 इस कॉन्ट्रैक्ट टर्म। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर से आप टेक्स्ट बुक लेकर आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट टर्म स्लैश टेन्योर स्लैश यूनिट्स, कॉन्ट्रैक्ट टर्म स्लैश टेन्योर स्लैश यूनिट्स। मतलब क्या? अरे बाबा, कितने पीरियड के लिए
आपने डिसाइड किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फॉर हाउ मेनी पीरियड, हाउ मच पीरियड यू हैव डिसाइडेड कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसे प्यार से कॉन्ट्रैक्ट टर्म कहते हैं। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? जैसे अपने एग्जांपल में अगर आपको याद होगा, इट वाज 1 ईयर, डू यू गेट दैट? दैट इज अवर कॉन्ट्रैक्ट टर्म। तो लिखो ना करके फटाफट, इसमें लिखो, दिस इज अ टर्म ओवर विच, इसको कॉन्ट्रैक्ट यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है? दिस इज अ टर्म ओवर विच द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, this is a term over which the parties to the contract have enforceable rights. This is a term over which the parties to the contract have enforceable rights. मतलब एक साल के लिए जियो का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तू हमको सर्विस दे, और एक साल के लिए मेरा राइट बनता है कि मैं जियो को बोलूं मेरे को सर्विस दे। अरे आपको समझता है क्या? फुल स्टॉप। इन केस देयर इज अ टर्मिनेशन क्लॉज विदाउट पेनल्टी, in case there is a termination clause without penalty, comma, the actual term of the contract, in case there is a termination clause without penalty, comma, the actual term of the contract, in case there is a termination clause without penalty, comma, the actual term of the contract may be greater, the actual term of the contract may be greater than the term to be used for purpose of accounting. The actual term of the contract may be greater than the term used for purpose of accounting. Than the term used for purpose of accounting. Than the term used for purpose of accounting. बराबर? अच्छा, अब इसका मतलब क्या है मालिक? मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला लाइन तो बहुत क्लियर था, वो मैंने आपको बता दिया। वो आगे का लाइन का मतलब क्या है? मान लो आपने ना 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। कितने साल का? 3 साल का। लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है कि देयर इज नो पेनल्टी आफ्टर 1 ईयर। मतलब 1 साल के बाद ना अगर कोई भी पार्टी तोड़ देता है तो देयर इज नो पेनल्टी। 1 साल के पहले तोड़ा तो देयर इज पेनल्टी और हैवी पेनल्टी, लेकिन 1 साल के बाद तोड़ा ना तो कोई भी पार्टी तोड़ सकता है, देयर इज नो पेनल्टी। तो कहने से एक्चुअली ऑन पेपर इट इज 3 इयर्स बट इन रियलिटी इट इज ओनली 1 ईयर, बिकॉज 1 साल के बाद तो कोई भी तोड़ देगा। बराबर? तो आपको वही बोल रहा है कि भाई भले ही ऑन पेपर इट मे बी मोर देन द टर्म बट इन रियलिटी इट इज लेस देन द टर्म। डू यू गेट दैट? तो आपको ये चाहिए तो वहां पे लिख दो करके, जो मैंने आपको बोला ना वो आप अपने शब्द में वहां पे लिख दो। लिख दो एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट टर्म 3 years, but there is no penalty after 1 year, so anybody can break after 1 year, therefore contract term 1 year. डन? अच्छा, फिर दूसरा लिखो, कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। बस इसके बाद आज अपने को ज़्यादा लिखना नहीं है करके, ठीक है? मेन अपन एग्जाम्पल पे फोकस रहेंगे। ये लास्ट साल लिखना है। लिखो लिखो जनरली, लिखो जनरली रेवेन्यू फॉर, generally revenue for each contract, generally revenue for each contract should be recorded separately. Generally revenue for each contract should be recorded separately. Generally revenue for each contract should be recorded separately, full stop. However, two or more contracts, however, comma, 2 or more contracts may need to be aggregated
however comma two or more contracts may need to be aggregated and accounted as a single contract. However comma two or more contracts may need to be aggregated and accounted as a single contract if they are entered at the same time, if they are entered at the same time and if they are entered at the same time and the contracts are negotiated, if they are entered at the same time and the contracts are negotiated as a package, and the contracts are negotiated as a package with a single performance obligation, and the contracts are negotiated as a package with a single performance obligation. Full stop. बोलो। अच्छा देखो क्या लिखा है, जनरली रेवेन्यू फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। बराबर, मतलब क्या भैया, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग आप रेवेन्यू बुक करो। बराबर। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। हाउएवर टू और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स में नीड टू बी एग्रीगेटेड एंड अकाउंटेड एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। अब मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने ना अपना जो हेमंत भाई है उसको बोला, हेमंत भाई ध्यान से सुनो, मैं ना आपको एफआर पढ़ाऊंगा, मैं आपको एएफएम पढ़ाऊंगा और मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दे दूंगा। सब मोटा मोटी मिला के, मतलब आप ऐसे समझो कि देखो जनरली ना एफआर की फीस कितनी होती है, मान लो होती है 10,000। एएफएम की फीस कितनी होती है, मान लो होती है 12,000 एग्जाम्पल। और टेस्ट सीरीज की फीस कितनी होती है, मान लो होती है 3,000। आप एक काम करो करके, आप एक काम करो, मैं ना आपको तीनों का तीनों सर्विस देता हूँ, तीनों का तीनों एक साथ सिंगल पैकेज में 15,000 रुपये एक साथ, इसमें मैं आपको तीनों दे दूंगा। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड, देखो वहां पे क्या लिखा है, हाउएवर टू और मोर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप देख रहे हो इधर एफआर एएफएम टेस्ट सीरीज, may need to be aggregated and accounted as a single contract if they're entered at the same time। कहने से मैं हेमंत के साथ सेम टाइम में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। बराबर। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज। अरे बराबर ना, मैंने हेमंत को एक साथ सिंगल पैकेज ऑफर किया, कितना, 15,000 विद सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मैंने बोला देख तीनों का तीनों मैं देख लूंगा। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला, तो मेरे लिए ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। देखो वैसे ही जियो के लिए ना बोलने के लिए आप 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, लेकिन जियो पर्सपेक्टिव आप देखोगे तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या किया। डू यू गेट दिस? डन। ओके तो आप क्या कर सकते हो, इसको कंबाइन भी कर सकते हो। तो सर आपने पहले ही क्यों नहीं किया? बिकॉज बेटा पहले मैंने तेरे को कंबाइनिंग का मतलब नहीं सिखाया था ना, इसलिए मैंने उसको अलग अलग कर दिया। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? डन। ओके इसके बारे में ना, इसके बारे में तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वर्ड को ना अंडरलाइन करो ना एक बार, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वर्ड को ना अंडरलाइन करो ना आप एक बार। बराबर। अगर आपको याद होगा आपका सीपीटी एआईआर में सी कॉन्ट्रैक्ट एंड पी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो अपन करेंगे ना तो ये आपको और डिटेल में समझेगा। अच्छा डोंट वरी, कब कंबाइन करने का कब नहीं करने का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे एग्जांपल आएगा आपको समझ जाएगा। फिलहाल तो अपन ने एक्चुअली एक भी सम स्टार्ट नहीं किया है, तो जैसे जैसे आएगा अपने को समझ जाएगा। फेयर। ओके किड्स जो आर अटेंडिंग ऑनलाइन प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन, कैन आई गो अहेड? एक मस्त वाला मेरे को कंफर्मेशन दो ना सब लोग जल्दी। हेमंत, जय किशन, पर्फ, पी अंधेरी एडमिन जल्दी। डन। अर्नव। ओके ग्रेट। चलो अब अपन ना थोड़ा अच्छा पढ़ते हैं करके, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेट अस ट्राई एंड डूइंग दैट। बराबर। गिव द नेक्स्ट हेडिंग 3B, गिव द नेक्स्ट हेडिंग 3B। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है करके। गिव द हेडिंग। अच्छा याद रखना अपन अभी भी किस में, कॉन्ट्रैक्ट में ही है। अभी तक स्टेप नंबर 1 नहीं हुआ है लाला, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 होगा, उसके बाद चैप्टर खत्म है, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? फेयर। ओके इस संडे ऑल्सो तुम्हारा लेक्चर क्लैश हो रहा है क्या? संडे ऐसा लेक्चर था ही नहीं ना पहले, अचानक रख दिया क्या? पहले से ही आया हुआ था, मुझे भी कोई अक्षर ने नहीं बताया कि संडे को भी आपका लेक्चर है। ओके तो इज इट द सेम टाइम, मॉर्निंग ही है? Okay, fair. Will not clash. Don't worry. What will happen is we'll keep the evening slot for both Saturdays and Sundays. अभी तक आपका लेक्चर मैंने सैटरडे अनाउंस नहीं किया बिकॉज
वही आपका जो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है करके, कल तो अपना लेक्चर है ही सेम टाइम, आई विल रिपीट, कल अपना लेक्चर है ही सेम टाइम, संडे विल नॉट क्लैश इट, विल टेक द सेकंड स्लॉट, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। संडे कितने बजे तक है मैम? हाँ तो फेयर, विल स्टार्ट विद 11:30 और 12, विल टेक द सेकंड स्लॉट, मस्त 6 घंटा पढ़ लेंगे संडे को, कोई टेंशन नहीं है, विल टेक द सेकंड स्लॉट, डन डन गाइस, ओके। सैटरडे का मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ, कल अपना लेक्चर है सेम टाइम, बराबर ना। चलो संडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो जाएगा, आप अच्छा खासा खींच लेंगे चैप्टर को, बराबर। तो विल टेक द सेकंड स्लॉट, विल नॉट क्लैश बिकॉज आईडीटी आपका थोड़ा बड़ा है, सो अपन क्लैश नहीं करेंगे, मस्त संडे खींचेंगे। और सैटरडे भी मैं ट्राई करता हूँ कि अपन सेकंड स्लॉट ले ले, सैटरडे भी आपका लेक्चर है, सैटरडे भी अपन एक और स्लॉट लेने का ट्राई करते हैं, सैटरडे कंफर्म नहीं करूंगा मैं आपको, कल कंफर्म है, संडे कंफर्म है, सैटरडे का बताता हूँ, डन। चलो फेयर, आओ 3B बात करते हैं। लिखो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, बराबर। अब इसका मतलब क्या है, सुनो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करो। अच्छा अब आप पहले मत लिखो वापस, आप सुन लो, धीरे धीरे आप लिखना, ठीक है। सुनो, अभी एएस है, ठीक है, और यहां पे मैं हेमंत भाई लेता हूं, एएस का ना ये हाउस है, और हेमंत भाई जो है ना वो पेंटर आदमी है, अरे पेंटर पेंटर, ठीक है, एएस का घर है और हेमंत भाई जो है पेंटर आदमी है। एएस से हेमंत भाई को बोला, हेमंत भाई एक काम करो, मेरा जो हाउस है उसको आप पेंट कर दो। हेमंत भाई ने बोला ठीक है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, बुद्धि ला के मेरे को बताना, हम दोनों में से सर्विस प्रोवाइडर कौन है? हेमंत भाई सर्विस प्रोवाइडर है, अरे बराबर कि नहीं? बराबर है सर। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, सुनो। तो ये भाई साहब कौन है? ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर, और मैं कौन हूं? मैं हेमंत का कस्टमर है, बराबर। अच्छा अब मैंने हेमंत भाई को बोला, मैंने बोला हेमंत भाई एक बात बताओ, कितना कितना पैसा लोगे? हेमंत बोलता है सर आपका घर ना थोड़ा बड़ा है करके, क्या आलिशान घर है, पेंट हाउस एंड ऑल, बराबर। तो मैंने बोला कितना लगेगा हेमंत भाई वो बताओ करके, फालतू का चढ़ाओ मत। हेमंत भाई ने बोला सर देखो, आपका घर बनाने के लिए लगेंगे 25 दिन, और मैं लूंगा 25 दिन का पर डे 1000 रुपीज। सर मेरा जितना स्टाइफंड ना उतना तो मैं लूंगा ही आपसे, ठीक है। तो 25 दिन का काम है और पर डे का 1000 रुपीज लगेगा, एंड दैट इज वाई मैं आपसे टोटल 25,000 रुपये लूंगा, ऐसे हेमंत भाई ने मेरे को बोल दिया। मैंने कहा ठीक है हेमंत भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हेमंत भाई जो है ना बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। हेमंत भाई बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी है, मेरे लेक्चर्स भी आते हैं, हम टच में भी है, ठीक है। कुछ डाउट्स है तो हेमंत भाई पूछते भी है, एंड पेंटिंग भी अच्छा करते हैं। अब हेमंत भाई ने ना 15 दिन तो काम कर दिए। अब आफ्टर 15 डेज मुझे हेमंत भाई का काम बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार क्या पेंटर है यार हेमंत भाई, मतलब पेंटर हो जैसे हेमंत भाई जैसा, हेमंत भाई मतलब पेंटर, मस्त आदमी निकला हेमंत भाई। तो मैंने हेमंत भाई को क्या बोला, 15 डेज के बाद ना मैंने हेमंत भाई को वन मोर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैंने क्या दे दिया, वन मोर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैंने बोला हेमंत भाई एक काम करो, आप ना, मेरा वाड़ा में फार्म हाउस है, ठीक है, वाड़ा करके एक जगह है करके, है ना। तो मैंने बोला हेमंत भाई एक काम करो, मेरा एक वाड़ा में फार्म हाउस है करके, आप उसको भी पेंट कर दो, ठीक है। तो हेमंत भाई गए, चेक वेक किया। अब ये बात कब हो रही है, ये बात हो रही है 15 डेज के बाद। मैंने बोला हेमंत भाई इसको भी पेंट कर दो, इसका कितना लगेगा? हेमंत बोलते हैं सर ये भी बड़ा है, लेकिन इसमें ज़्यादा ऐसा इतना बड़ा है, इतना आपका घर बड़ा है करके, सर इसको पेंट करने में 12 डेज ही लगेंगे, 12 डेज, ठीक है। तो मैंने बोला ऐसा इसका कितना? बोलता है सर मेरा सेम है, सर मेरा सेम है, इंटू 1000 पर डे, इतना ही लगेगा। मैंने कहा हेमंत भाई कोई डिस्काउंट विस्काउंट, पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी था, नया भी दे रहा हूँ। हेमंत भाई बोलता है नहीं मेरा रेट फिक्स है। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड, हेमंत भाई ने, ध्यान से सुनो, बिकॉज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नो डिस्काउंट was
ऑफर्ड, अरे बराबर कि नहीं, बिकॉज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नो डिस्काउंट वाज ऑफर्ड, मतलब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से हेमंत भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल हेमंत भाई ने मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं दिया, बराबर कि नहीं बराबर, यस सर बराबर है, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो फार्म हाउस पेंटिंग है ना मालिक, ध्यान से सुनना, ये जो फार्म हाउस है इसको ट्रीट एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ट्रीट करना। एम आई वेरी क्लियर, इसको आप एक अलग कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करो। वाई? बिकॉज हेमंत भाई ने पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई डिस्काउंट नहीं दिया, रैदर ही स्टिल चार्जिंग द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। डू यू गेट दैट? खत्म। तो ये तुम्हारा पहला केस है, लिखो जल्दी लिखो जल्दी। डन? डन? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, बोलू? ओके, अब नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 बोलू? ओके, अब वापस पेन्स डाउन, सुन लो आप। अच्छा, अब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? तो सर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ये था कि 25 डेज इंटू 1000 पर डे, दैट विल बी 25,000। अच्छा, डेट क्या था? वही 1 मई टू 25 में, ये डेट था, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज रेवेन्यू बुक्ड टिल डेट, कहने से 15,000 हो जाएगा, बराबर। अच्छा, 15 दिन के बाद कोई बोलेगा रेवेन्यू कितना बुक कर लिया, तो सर 15,000 बुक ही कर दिया ना, बराबर। 1000 पर डे के हिसाब से 15 दिन का 15,000 रेवेन्यू बुक कर लेंगे, बराबर। अच्छा, अब क्या हुआ, वापस एएस ने क्या किया, बोला मेरा फार्म हाउस पेंट करके दे। हेमंत भाई ने बोला सर 12 डेज लगेंगे, ठीक है, क्या लगेंगे सर? 12 डेज लगेंगे, जिसका मैं आपको रुपीस 760 पर डे लूंगा। मैंने कहा हेमंत भाई डिस्काउंट? कहते हाँ सर, बिकॉज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप मेरे को नया कॉन्ट्रैक्ट भी तो दे रहे हो। मैंने बोला कब से लेके कब तक? बोलता सर 26 मई से लेके ये प्रोजेक्ट चलेगा 6 जून तक, बराबर ना, 12 डेज करके 26 मई से लेके कब तक? 6 जून तक ही लगेगा करके। अरे बराबर ना, क्यों डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट दिया बिकॉज हमने आपको ऑलरेडी एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया था और आप ही हमें अब क्या कर रहे हो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो। अब क्या करने का, अब क्या करने का, ध्यान से सुनो, देयरफॉर, कौन है नॉनसेंस, ये ना जो भी बकवास कर रहे हैं ना करके, भाई इधर बंद करो, स्क्रीन पे लिखना बाकी बच्चे पढ़ने आए करके, समझ गया तो फोन करके बढ़िया सी बातें सुनाऊंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलने की ट्राई करूँ, देखो। ओके, सो कहने से आपका ना 12 डेज इंटू 760 पर डे इतना लग रहा है करके, बराबर। अब क्या करने का, सुनो ध्यान से सुनो, अपन ऐसा बोलेंगे कि देयर फॉर रिमेनिंग पीरियड, अब कैसे करने का, अपन बोलेंगे 10 डेज इंटू 1000 पर डे, कहने से तो बाकी है, हाँ सर, प्लस 12 डेज इंटू 760 पर डे,
अरे ये भी बाकी है बराबर, द होल डिवाइड बाय 22 डेज कर दो। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला भाई, 10 दिन के लिए मैं 1000 रुपये पर डे लेने वाला हूँ और 12 डेज के लिए इंटू 760 पर डे लेने वाला हूँ, मतलब मेरे गले में कहने से इतना पैसा आएगा। द होल डिवाइड बाय एक काम करो, इसको ना 700 कर दो तो आपको कैलकुलेशन ना इजी हो जाएगा। 760 नहीं, इसको 700 कर दो, इसको ना 700 कर दो। बोलो कितना आता है, अब बोलो कितना आता है। द होल डिवाइड बाय 22 डेज, बोलो कितना आता है। यस मैम, 836.36 पर डे। अरे बराबर कि नहीं। सो देयर फॉर फ्रॉम 16th डे, फ्रॉम 16th में बेसिकली पर डे जो रेवेन्यू होगा दैट विल बी 836.36 पर डे। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला, इसको अपन प्यार से कहते हैं प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग। मतलब सर जो बीत गया वो बीत गया, अभी से फ्रेश अकाउंटिंग करने का। डू यू गेट दैट? फेयर। लिखो इसको आप लोग। एक मंथ का गैप लेता तो फिर उसको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करते अपन लोग। नहीं तो फिर नहीं होता ना, एक दिन का गैप लेते तो अपन जितने दिन उसने काम किया, अपन ऐसा बोलते कि देख जो फॉर एग्जांपल जो आपके 10 ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो अपन बोलेंगे 10 डेज इंटू 1000 प्लस जो नया कॉन्ट्रैक्ट तो जब भी स्टार्ट कर, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल तू बोलता है मुझे 25 दिन लगेंगे और मैं एक दिन बाद स्टार्ट करूँगा, तो 25 दिन ही होगा ना वो तो, भले एक दिन बाद स्टार्ट कर। हाँ उस पर्टिकुलर दिन रेवेन्यू बुक नहीं होगा बिकॉज उस दिन तो तूने काम ही नहीं किया। या फिर उस पर्टिकुलर दिन आप एक ही काम करते हो तो प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू बुक होगा। जैसे 836 डिवाइड बाई 2, डू इट प्रोपोर्शनेटली। समझा? देखो भाई, क्या बात है अर्नव भाई, सुबह सुबह एकदम बढ़िया लग रहे हो आप। कल ना यूट्यूब स्ट्रीम ही ट्राई करेंगे, बार बार ना वो रुकता नहीं है, कम से कम एटस से चल जाता है करके और बाद में लेक्चर भी तुरंत आ जाता है। तो कल यूट्यूब स्ट्रीम ही ट्राई करेंगे। संडे को ना ऑफलाइन कर लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, संडे ऑफलाइन होगा तो फिर भाड़ में जाए बंद हो तो भी चलेगा, अब बड़ा लेक्चर हो जाएगा। समझता है क्या? सैटरडे का कन्फर्मेशन देता हूँ, कल यूट्यूब स्ट्रीम करते बच्चा लोग, मैं लिख भी दूंगा आपके उस पर, है ना। यूट्यूब स्ट्रीम इज़ नेवर अ प्रॉब्लम। हो गया वाला? ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टॉप हियर, क्योंकि ये चल वल नहीं रहा है करके अपना इतना पार्ट हो गया। वी आर ऑलमोस्ट नियर टू क्लियरिंग द स्टेप 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 आपका आई थिंक हार्डली 15 मिनट का बाकी है, एंड डायरेक्टली विल स्टार्ट विद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर इंडेस 115, सो दैट विल डू इट टुमारो। ठीक है, विल स्टॉप हियर गाइस।